اگر اس جموں کشمیر چناو میں کوئی ایک ایکس فیکٹر ہے، وہ ترپ کا پتا کس کے ہاتھ میں ہے، کس کی شے پہ ہے، خود اپنی مرضی سے چلتا ہے یا کسی کے کہنے پہ چلتا ہے، ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت آج تک کی پنچایت کے اس آخری سیشن میں موجود ہیں ایک بے حد خاص مہمان، بارہمولہ کے سانسد، دو قداور نیتاؤں کو ہرانے کے بعد لوک سبھا پہنچنے والے اور جیل سے چھوٹنے کے بعد پہلی مرتبہ انٹرویو دینے یہاں ڈل جھیل کے کنارے پہنچے انجینئر رشید صاحب، سواگت ہے آپ کا۔ اشرف وانی ہمارے بیورو چیف ہیں، وہ میرے ساتھ اس انٹرویو میں رہیں گے۔ یہ آپ ایک طریقے سے جیل سے چھوٹے، تہاڑ سے باہر نکلے، بارہمولہ میں سبھا کی، سیدھے آج تک پہ آئے، بالکل، تو یہ بڑی بات ہے اور آپ کا سواگت بھی۔ آپ کا الیکشن میں کیا رول رہنے والا ہے، اس کو لے کے بہت گہما گہمی، الگ الگ کنسپیریسی تھیوری چل رہی ہیں۔ آپ کے ورودھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہنچایا گیا ہے یہاں پہ این سی اور پی ڈی پی کا ووٹ کاٹنے کے لیے، کہ کسی طریقے سے دلی کی شے پہ، ورنہ یو اے پی اے میں کسی کو بیل نہیں مل رہا، دلی کی شے پہ انجینئر رشید آئے ہیں ابھی این سی پی ڈی پی کا ووٹ خراب کرنے کے لیے۔ آپ اپنے رول کو، اپنے بیل کو، اتنے وقت آپ جیل میں تھے، اب باہر نکلے، ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مائک آپ کے پاس میں ہے، انجینئر رشید۔ پہلے میں آج تک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، ادروائز پورے دیش کو پتا تھا کہ انجینئر رشید مر چکا ہے، کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، لیکن میرے لوٹ کے آنے کا مطلب ہے کہ سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ اینڈ آئی ہیو بائی گریس آف مائی گاڈ اینڈ ود دا بلیسنگز آف مائی پیپل ایمرجڈ اسٹرانگر دین بفور، اور تہاڑ نام ہی کافی ہے۔ پھر جو آپ نے کہا بیچ میں یو اے پی میں بیل نہیں ملتی، این سی پی ڈی پی کہتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو وحید پرا صاحب 5-6 مہینوں کے بعد یو اے پی کے 2 کیس ان پر سے وہ باہر نہیں آتے۔ مجھے تو میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں، پہلے میں انہیں یہ کہوں گا، یہ ووٹر، یہ کشمیری ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ بائی سیئنگ دیٹ دے آر کوسچننگ دا وزڈم آف دا ووٹرس۔ کشمیری جانتے ہیں انہیں کب، کیا اور کہاں کرنا ہے، وہ اپنی چوائس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آج انہوں نے مودی جی کے گال پر ایسا تھپڑ مارا کہ ابھی امت شاہ جی ان کو مرہم لگاتے ہوں گے کہ انجینئر رشید نے تھپڑ مارا ہے، اور نارتھ کشمیر سے مودی جی کے ایک دن اپنے جو بائی کہتے تھے، آپ سمجھ گئے، جو تیسرے نمبر پر رہے، تو وہ بھی ہار گئے، ہمارے ایکس چیف منسٹر بھی ہار گئے۔ لیکن مجھے ان کے ہارنے کی خوشی نہیں ہے، مجھے اپنے جیتنے کی بھی خوشی نہیں ہے، لیکن یہ خوشی ضرور ہے کہ میری جیت جو مودی جی کے نیا کشمیر کا ویژن ہے اس کی ہار ہے، جو مودی جی نے 5 اگست 2019 کے دن کشمیریوں کے ساتھ بہت ہی برا کیا۔ خود رام راج کی بات کرنے والے نے جس طرح کشمیریوں کی سانسیں تک، پانی تک روکا، ان کو کشمیریوں نے یہ پیغام دیا میری جیت کی صورت میں، مودی جی ڈرو مت، ڈرو مت۔ آج ہمارا ان کے لیے میسج ہے، مودی جی ڈرو مت، ڈراؤ مت۔ باقی سر، کل 6 بجے میں جیل سے نکلا، اس کے بعد پریس کانفرنس کی، پھر لگ بھگ 2:30-3 بجے تک لوگوں سے دلی میں اپنے جو کشمیری تھے کچھ ان سے ملتے رہے۔ صبح 4:30 بجے ایئرپورٹ نکلے، پھر وہاں سے جب 9 بجے پہنچے تو یہاں ایئرپورٹ سے ہم نے بارہمولہ کے ایک ریموٹ ولیج میں ایک تھوڑا سا پروگرام رکھا تھا، کہیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھا، کہیں کوئی کرائے کے لوگ نہیں تھے، تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کے چینل کے لوگ بھی شاید وہاں تھے، تو ہزاروں کی تعداد میں اپنی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں، کوئی ایک بڑی گاڑی نہیں، کوئی کرائے کے لوگ نہیں، تو وہاں ہمارے لوگ تھے۔ میری لوگ سر میری طاقت ہیں، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ آگے بھی اتنا اچھا کریں گے کہ پی ڈی پی، بی جے پی، این سی اور باقی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں انہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ پھر جو آپ نے بیل کی بات کی، مجھے افسوس ہے، تو ان کو کہے کہ وہ جج صاحب سے ملے، انہیں پٹیالہ ہاؤس کورٹ کا ایڈریس میں دیتا ہوں، وہ جج صاحب سے کہہ دیں کہ کیوں بیل دے دی، اور انٹریم بیل ہے اینی وے۔ اور پھر عمر عبداللہ صاحب جو کہتے ہیں، ود آل ریگارڈس ٹو ہم، اگر سر آپ کو یاد ہوگا، پہلے میں آپ کو یہ کہوں، جیل از منی انڈیا، وہاں میں نے دنیا کے لوگ دیکھے، پورے کنٹری کے لوگ دیکھے، اور جو لو اور ریسپیکٹ مجھے وہاں پر کٹنگ اکراس کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن لوگوں نے دیا، ہر دھرم کے لوگوں نے دیا، میری 7 پیڑھیاں ان کا احسان نہیں چکا سکتی ہیں۔
जिस दिन सर मैं इलेक्शन जीत गया वहां, तो लगभग यकीन करें सर 2 लाख की मिठाई मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों ने बांटी तिहाड़ जेल में, और ये मुझे तब पता चला काश यही असल हिंदुस्तान होता, मोदी जी का आज का हिंदुस्तान नहीं होता. एंड हैविंग सेड दैट, 18 जनवरी 2024 को मुझे कहा गया थ्रू इंटरलॉक्यूटर्स कि मोदी जी का छोटा भाई, आप समझ गए ना मैं किस, नहीं मैं नहीं समझा, नहीं, कौन छोटा? आप समझाइए, आप समझाइए. राहुल कमल साहब आप समझ गए? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, समझा. हम ये आप तो समझ गए ना मैं किनका कह रहा हूं. तो नहीं, किसकी ओर इशारा कर? जो अभी आपके साथ शायद बात कर रहे हैं. अच्छा सर, आपको नहीं पता, नहीं, सजाद लोन बोली ना सीधे, वो तो मैंने उनका नाम थोड़ा लिया. मोदी जी ने कहा, मैंने थोड़ा कहा. सजाद साहब ने खुद कहा ना मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं. आप बताइए, नहीं कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा, उन्होंने तो फिर उन्होंने मैंने माफी भी तो मांगी. फिर आप क्यों घुमा रहे हैं? नहीं, अब तो आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने साफ कहा कि दूर दूर तक तौबा तौबा बीजेपी से. मरहबा, इसका वही है जो अपने बड़े भाई का नहीं हुआ, कश्मीरियों का क्या होगा? इतनी छोटी सी बात पर मोदी से दोस्ती काट ली. अरे और वो भी असेंबली के इलेक्शन के लिए, है भी क्या असेंबली है, ये तो मेरी म्यूनिसिपैलिटी से भी बदतर है. हाँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे मोदी को दिखाना है कि कश्मीरी जो है दे आर रिजेक्टिंग योर डर्टी पॉलिसीज, योर ऑपरेशन, और जो कुछ भी आपने किया वो कश्मीरियों को कबूल नहीं है. तो मैं ये कह रहा था 18 जनवरी को जो हमारे हर इनमेट को 5 मिनट फोन के मिलते हैं डेली सर, जो उनको हफ्ते में 2 बार फोन कॉल मिलती है, मेरा वो भी काटा गया. यू कैन गो एंड चेक द जेल रिकॉर्ड्स. मुझे पागलों और हैंडीकैप्ड लोगों के वार्ड में डाला गया. मेरा एक टाइम का खाना बंद किया गया. हालांकि वो प्रशासन बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उन पर दबाव था. और उस दबाव मैंने उसके रेजिस्टेंस में जब मेरा सारा कुछ बंद किया, तो मैंने अपने वकील को बुला के कहा एक काम तो कर लीजिए, भगवान तो है, मैं भी चाहता हूं कि इंडिया में रामराज आए, लेकिन सचमुच का रामराज, मोदी जी वाला रामराज नहीं. सीता जी की फिक्र तो थी, लेकिन मेरी सीता के बारे में नहीं सोचा, वो 5.5 साल से क्या कर रही है. शबीर शाह की सीता के बारे में नहीं सोचा, 22 साल से वो अपने राम से बिछड़ी है. अल्ताफ फंतोश साहब की सीता के बारे में नहीं पूछा, जो अल्ताफ फंतोश मेरा सेल इनमेट था और उसका देहांत जेल में हुआ, इलाज नहीं मिला. गिलानी साहब के बारे में नहीं सोचा, जिनका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया. अशरफ शहराई साहब भी जेल में इंतकाल कर गए, उनका जनाजा नहीं पड़ा. और ये कैसा मोदी जी जो कहते हैं वो वसुदेव, क्या वसुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, कैसा वसुदेव कुटुंबकम? इतना तो कह दो कश्मीरीज आर नॉट पार्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम. हम तो आपके, यू आर ट्रीटिंग अस लाइक ए कॉलोनी. मोदी जी ये चीजें मत कर लीजिए. हम हिंदुस्तान के हमदर्द हैं, दोस्त हैं. हम चाहते हैं ये कंट्री सुपर पावर बने, 47 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी बढ़े. वी विल बी द बेनिफिशियरीज. Great people, good institutions, despite all negativities in political spectrum, there still is a hope. सर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को इतने पैसे कहां से मिलते हैं, ये कैंपेनिंग का कैसे लड़ा जाता है? इतने असेंबली कैंडिडेट्स बार बार आपके ऑपोजिशन लीडर्स पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं दाल में कुछ काला है, लगता है दिल्ली से इनको पैसा मिल रहा है. बोलते दिल्ली के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे इनको दिल्ली से पैसा मिलता है. पहली बात यह है कि दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली है. आप मैं बताऊंगा कैसे. सर, जिन लोगों ने आपको यह बताया, मैं 5.5 साल से तिहाड़ जेल में हूं, और मैं कह रहा था 18 जनवरी से आज तक, कल तक मेरा फोन भी जो ऑफिशियल मतलब जो नियम में है जेल में, मेरा वो भी बंद किया गया. और जिस दिन मैं एमपी बना तब मुझे पता चला कि मैं एमपी बन गया हूं. ट्रस्ट मी, आई हैड नो आइडिया क्या हो रहा है पर्दे के पीछे. I had complete disconnect with the society. तो लिहाजा जो बंदा 5.5 साल से यूएपी में बंद हो, जो बंदा 5.5 साल से यूएपी में बंद हो, जिसको मेरी आंटी की डेथ हो गई, आई कुड नॉट गेट ए पैरोल, मेरी मासी की डेथ हो गई, आई कुड नॉट गेट ए पैरोल, तो मुझे क्या पता कि कैसे पर्दे के पीछे कहानियां होती हैं. हाँ, जिन लोगों ने बताया कि पर्दे के पीछे दिल्ली शायद पैसा देती है, ओबियसली इसका मतलब उनको सारा पता है दिल्ली कैसे चलाती है, पैसा देती है. तो आप मुझसे पूछे कैसे देती है, अगर वो मुझे एड्रेस दे देंगे मैं देख लूंगा कौन देता है, कैसे देता है. और आपकी जो आज तक चैनल हमारी है, जिसकी काफी क्रेडिबिलिटी है सर, 2017 में आपने एक सिटिंग ऑपरेशन किया जो सो कॉल्ड टेरर फंडिंग केस की बेसिस था. तो आपकी टीम ने मेरा भी एक सिटिंग ऑपरेशन इधर होटल सुनोबर या कहीं पर किया. तो मेरी इतनी, मैं आपको चैलेंज करता हूं आज, आप में अगर आपकी चैनल में अगर, सॉरी टू यूज अ बिट हार्ड वर्ड, अगर हिम्मत है तो वो सिटिंग ऑपरेशन आप देश के लोगों को बताइए.
वहां आपको इतना मिलेगा, कम से कम आपने पूरी कोशिश की कि मुझे पैसा ऑफर करने की ताकि मैं यहाँ पर हड़ताल कराऊं, बाकी चीजें आऊं। वो मेरे पास बिजनेस हेड्स बन के आए, मुस्लिम नाम से आए, हम पाकिस्तान के सिंपैथाइजर हैं, हम IPL खेलते हैं, कोई बारामूला के साथी उनके साथ है, कोई और थे। मैंने कहा इंजीनियर रशीद लोगों का एजेंट है, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। और गिला आपसे यह है कि आपने आज तक वो चीज पूरे देश के लोगों ने नहीं बताई। वी शॉट इंजीनियर साहब, प्रिसाइज, इतना मुझे कहना है कि सर हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाएंगे, हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके साथ लोग होंगे उसके पैसों की क्या जरूरत है। जब मैं जेल में था तो उस वक्त किसने पैसा दिया। और सबसे बड़ी बात राहुल कंवर सर, फैसला तो लोगों ने दे दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो तो मेरे वोट काट रहे हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट है, जीता मैं हूं और मैं वोट कटर कैसे हो गया। अफसोस की बात है, हारी मापा मुफ्ती है। काश मैंने कुछ लोगों की बात मानी होती। अगर मैं साउथ कश्मीर से भी लड़ गया होता, ये दोनों चीफ मिनिस्टर, मैंने चीफ मिनिस्टर कहा, चीफ मिनिस्टर नहीं, कश्मीर को तबाही के दाने पर इन लोगों ने लाया, दोनों हार जाते। इंजीनियर साहब, आपने कल दिल्ली में एक बयान दिया, अब आप जेल से छूट गए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आपके बेटे से हमने बात की थी, उन्होंने कहा मैं पॉलिटिशियन एज कंपेन नहीं कर रहा हूं, मैं एज वॉलंटियर कर रहा हूं। अबरार ने इंजीनियर रशीद साहब का कंपेन, और अभी तक जब तक आप जो जेल से छूटे वही आपकी कमान संभाल रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं, क्या आपकी पूरी तैयारी नजर जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा बनाने की है, सरकार बनाने की है, या फिर आपको उसमें कमी कुछ लग रही है? तो अगर सरकार बनाएंगे, जाहिर है यहाँ 2 डिवीजन है जम्मू और कश्मीर, आप इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या किसी के साथ नहीं रहेंगे? पहली बात है कि मेरी तैयारी पूरी सर कैसे होगी। कल 6:15 बजे में जेल से निकला, मुझे कोई आइडिया नहीं, इसीलिए मेरा गला बैठा है। वहां से आते ही आउट ऑफ कमिटमेंट नॉट फ्रस्ट्रेशन। अभी फरीद साहब आपके मुझे कह रहे थे आपका वजन 50 किलो लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जेल में मेरी सर्जरी भी आई, बाकी चीजें, लेकिन मेरी कमिटमेंट 50 किलो और बढ़ गई है लोगों के लिए, जो प्यार मुझे अपने लोगों ने दे दी। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं सर के तैयारी कैसी है, तो वो तो जैसे ही मैं निकला तो मुझे लगा कि लोग तैयार हैं, मुझे तैयारी करनी ही नहीं है। फिर जो आपने ठगबंधन की बात की, ये दोनों ठगबंधन है, गठबंधन कहाँ गए हैं? मुझे बताइए, राहुल गांधी के गठबंधन में और मोदी जी के गठबंधन में फर्क ही कहाँ है? फर्क इतना है कि मोदी जी सामने से मारते हैं कश्मीरियों को ओपनली, बेशर्मी के साथ, ये कांग्रेस वाले पीछे से सेक्युलरिज्म का निकाब लगा के मार देंगे। बाकी देयर नो डिफरेंस। हाँ, अगर राहुल जी और उनका इंडिया गठबंधन इतना ही सिर्फ कह दे, उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इतना ही कह देंगे कि अगर उनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है तो 370 वापस करेंगे, मैं पूरी 90 की 90 सीटों पर उनकी सपोर्ट करूंगा। 90 की 90 सीटों पर 90 की मैं अपील करूंगा और चूं भी जाऊंगा, दामन फैलाऊंगा लोगों के आगे, इनको वोट दीजिए, हो सकता है कल इनकी मेजॉरिटी आ जाए। और दूसरी बात, अगर उनका वो ठगबंधन है तो मैडम से कह दीजिए, आपने गुपकार अलायंस बनाया था, सर आपको भी याद होगा, मैं जेल में था, शिवसेना को दावत दी, केजरीवाल जी को दावत दी गुपकार अलायंस में, ऑल पार्टीज मीटिंग में, लेकिन हमारी अवामी इत्तेहाद पार्टी में 11 साल उनका MLA उनके साथ कुलीग रहा और वो इसी SKICC में रहे। हिंदू की रिपोर्ट थी, उनके 3.5 महीने के 4 महीने के खर्चे पे यहाँ जो ये सफेद हाथी मोदी जी से मशवरा करके यहाँ ex-MLAs मिनिस्टर्स, जिसमें सजाद साहब भी थे, मैडम थी, उमर साहब थे, शाह फैसल था, बाकी लोग थे, MLAs थे। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, मेरे पास कटिंग मौजूद है। 3 करोड़ 60 लाख रुपया 4 महीने के लिए इन पर खर्चा आया इधर राशन का 370 हटाने के बाद, और मैं तिहाड़ में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। लिहाजा एजेंट कौन है इसमें कहने की कोई भी जरूरत है क्या? एक इंटरेस्टिंग बात आपसे जानना चाहेंगे। सॉरी मैं कह रहा था, गुपकार अलायंस बनाने के बाद DDC इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने इकट्ठे लड़ा, छोटे लोगों को लड़ना था, कहा लड़ेंगे हम, तो हमारी कुर्सी सेफ है। उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो उसके बाद लड़ाई शुरू। अगर आइडियालॉजी इनकी किसी, इफ दे आर फाइटिंग फॉर सम आइडियालॉजी, अगर ये किसी बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में गठबंधन नहीं किया और फिर उससे बड़ी बात असेंबली इलेक्शन में गठबंधन नहीं किया। उनको धोखा था कि इंजीनियर रशीद शायद जेल में ही है, छोड़ेगी नहीं। और दूसरी बात, अगर सरकार मुझे कोई फेवर करना चाहती, मामला पहले कोर्ट का है, तो फिर इलेक्शन नोटिफिकेशन सर निकला 15 अगस्त के बाद ही, तब से आज तक 1 महीना हुआ, तो फिर मैं कब का गया होता? फिर तो आई कुड नॉट इवन फाइंड सुटेबल कैंडिडेट्स एट मेनी प्लेसेस। मतलब मुझे क्योंकि मैं बंद था जेल में, मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास है, शायद बिजबाड़ा में भी मैं कैंडिडेट उठा। नहीं इंजीनियर साहब, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आप अब सभी जिन्होंने रूल किया है जम्मू कश्मीर में, ये कह रहे हैं आप इन्होंने कुछ नहीं किया। एक सेक्शन है जम्मू कश्मीर में जिनको हम सेपरेटिस्ट बोलते हैं,
جس میں مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک گٹھ بندھن بنا تھا 1987 میں. اس میں پارٹیاں جو تھی جماعت اسلامی تھی, یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کے میں جو ایک سپریٹ وائس ہے, انہی کو آپ لیڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کیوں الگ سے الیکشن لڑ رہی ہے پھر؟ جناب یہ آپ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے, انہوں نے پیچھے قربانیاں بھی دی, ان کا ایک اتہاس ہے, انہیں بہت سے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے, وہ بھی لوگوں سے سوالوں کا جواب لیں گے. میں کوئی نہیں ہوں انہیں کوشچن کرنے کے لیے. میرے حساب سے این سی پی ڈی پی سے لاکھ درجہ بہتر جماعت اسلامی ہے, لیکن مجھے ان سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں. وہ میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا, وہ گھر کی باتیں ہیں, کوشش کروں گا ان تک میں وہ باتیں پہنچا دیں جو میری قوم کے وجود کو بچانے کے لیے ضروری ہے. انجینئر صاحب, آپ نے ایک ٹرینڈ جموں کشمیر میں شروع کر دی, خاص طور سے کشمیر میں. آپ نے جیل سے چناؤ لڑا, چناؤ بہت بڑے مارجن سے جیتا, فارمر چیف منسٹر کو ہرایا, سجاد لون صاحب کو ہرایا. تو ایک ٹرینڈ بن گئی کہ جیل سے چھوٹنے کا راستہ الیکشن لڑنا ہے. سرتاج جو برکتی صاحب ہیں, سرجان برکتی, وہ بھی اب انڈیپینڈنٹ ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے آپ سے ٹکٹ مانگا تھا آپ کی پارٹی سے, آپ نے نہیں دیا. کیا یہ سچ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں تو آج صبح کشمیر آیا, آج لاسٹ ڈے نامنیشن کا تھا, لیکن سچ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پہلے ہی 2 جگہ سے بھرا تھا, گاندربل سے, بیرو سے اور گاندربل سے. ایک بندہ میکسیمم 2 ہی جگہ سے لڑ سکتا ہے. دوسری بات, ہماری پارٹی کے لوگوں نے پہلے ہی چناؤ اپنے کینڈیڈیٹوں کی فہرست نکال دی تھی. اور تیسری امپورٹنٹ بات, جب وہ گرفتار ہوئے شاید میں واحد پولیٹیکل لیڈر ہوں جو ان کے گھر گیا تھا 2017 میں, اس لیے مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا. ہاں, ان کی رہائی کے لیے اگر میری بیل, آپ دعا کریں, پکی بیل لگی ہے, امید ہے کہ انصاف ہوگا, تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ جیل سے باہر آ جائے. کچھ سوال لیتے ہیں. ہاں یہاں سر. پہ میر فرید ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سوال. انجینئر صاحب, آلریڈی ایک جو ہے نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف, چاہے پی ڈی پی ہو, این سی ہو, کوئی بھی یہاں لوکل پارٹیز ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت کیوں چھوڑا گیا ہے. تو یہ 20 دن جب ان کا اپنا لوک سبھا کا الیکشن تھا تب تو ان کو نہیں چھوڑا. تو آپ کو جو ہے ریلیٹ کرنے کی کوشش, تاکہ آپ کا جو ایک ویو تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس ایک افیکٹو آپ کو بی جے پی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے, تو اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ پہلے سر آپ نے کہا لوکل پارٹیز, وہ لوکل ہیں ہی کہاں, ان میں صرف برینڈ لگائے, باقی اندر سارا گول مال ہے, اور بی جے پی اور کانگریس کی ایکسٹینشن ونگ ہے. وہ ریجنل پارٹی رہے گا, وائر از ریجنل کریکٹر. کوئی این ڈی کے پیچھے چل رہا ہے, کوئی انڈیا الائنس کے پیچھے چل رہا ہے. اس سوال کا میں نے جواب دے دیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیٹل مائی سیلف بائی آنسرنگ ٹو دوز جو عمر صاحب اور میڈم, یا جو یہ کہہ رہے ہیں مطلب ووٹ کاٹنے کے لیے مطلب ان کو چھوڑا گیا. پہلے افسوس کی بات یہ ہے, یہ جوڈیشری پر سوال اٹھاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے, ایم پی میں بنا, عمر عبداللہ الیکشن ہار گیا, میڈم الیکشن ہار گئی, اور وہ مجھے کہتے ہیں تو ووٹ کاٹنے آ گیا. میں انہیں کہتا ہوں تم میرے ووٹ کاٹ رہے ہو, میں بی جے پی کو ہرا دیتا. تم مہربانی کر کے گھر بیٹھو, تمہیں لوگوں نے بھی ہرایا ہے, کچھ تو شرم کرو, مت لڑو الیکشن, مجھے ساتھ دو. آئی ایم دا ونر, ونر کو کہا جا رہا یو آر اے ووٹ کٹر. آئی تھنک پورے دیش میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہوگا. آئی ہیو آنسرڈ یور. کو امید تھی کہ آپ جیتو گے چناؤ؟ مجھے اپنے لوگوں پر امید تھی اور اپنی کمٹمنٹ پر. اور اٹ از ناٹ اے ووٹ فار سمپیتھی. یہ ووٹ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو سمپیتھی فیکٹر کے لیے ووٹ ملا. راہل سر, میں آپ کو یہ بتا دوں, 2019 میں بھی میں نے پارلیمنٹ کا چناؤ لڑا, اور میں صرف 24-25 ہزار ووٹوں سے ہارا. میں تب 5 کانسٹیٹوئنسیز میں لیڈ لے گیا تھا. اور اگر تب میری کانسٹیٹوئنسی میں جہاں سے میں ایم ایل اے تھا, وہاں پولنگ کے دن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک فیک سٹون بیلٹنگ کرا کے ایک یوتھ کی کلنگ کرائی گئی تاکہ پولنگ پرسنٹیج کم ہو. ادروائز آئی ووڈ ہیو میڈ پارلیمنٹ ان 2019 اٹسیلف. اور سب سے بڑی بات سر, آج پورے دیش کے لوگوں کے ایک میسج آنا چاہیے. جو کہتے ہیں سینٹیمنٹ کا ووٹ تھا, سپریٹس کا ووٹ تھا, یہ چیزیں تھی. اوڈی کرنا گریس, اوڈی اور کرنا میں نے 60% ووٹ لے لیا. نہ کوئی شیعہ رہا نہ سنی. ریزرویشن امیر شاہ جی نے پہاڑیوں کے دے دی. انہوں نے کہا ریزرویشن امیر شاہ جی کی, ووٹ صرف انجینئر رشید کو. نہ کوئی پہاڑی رہا, نہ گجر, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ کشمیری. اٹ واز این ان ماس ووٹ. آئی ٹوک لیڈ ان 15 کانسٹیٹوئنسیز. پھر عمر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کٹر, جو فرید صاحب نے کہا, سر جب میرے بیٹے نے فارم بھرا تو عمر صاحب نے کہا, جو میں نے بعد میں سنا, کہ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا میں الیکشن لڑتا نہیں, ہم انجینئر صاحب کی مدد کریں. میں نے کہا بندہ تو آج بہت کشمیریوں کے لیے بہت کچھ اچھا بول رہا ہے, ٹھیک بات ہی. پھر جب کچھ دن آگے چلے, جب ہم جیت گئے الیکشن, تو پھر کہا یہ تو اسلامک ریڈیکلز اور یہ اسلامسٹ جو ریڈیکلز کی جیت ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے اسلامسٹ, بٹ نو اسلامسٹ کین بی اے ریڈیکل. چلیے یہ بھی صحیح بات ہے,
पूरी कंट्री में नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, इस्लामिस्ट और रेडिकल। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर हुए, कहा नहीं 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 नहीं, ये बीजेपी ने बंदा इसको घुसाया है। वो पहले ये डिसाइड करें क्या मैं बीजेपी के साथ हूँ, क्या मैं इस्लामिस्ट हूँ, क्या मैं रेडिकल हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, आई हैव सिंपैथी फॉर हिम, आई फील पिटी फॉर हिम। गांधरबल से उमर साहब ने टोपी मांग के, टोपी नीचे उतार के, ही वॉज बैगिंग फॉर द वोट्स। आई फेल्ट पिटी फॉर हिम, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक चीफ मिनिस्टर जिसका बाप चीफ मिनिस्टर 2-3 बार रहा, ग्रैंड फादर उसका, जिसने पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर गिफ्ट में दे दिया, वो अब एक एमएलए बनने के लिए भीख मांग रहे हैं। उसको सबक सीखना चाहिए। और इंजीनियर रशीद का बेटा और मेरे लोग निकलते हैं और जेल से मुझे चुनाव जितवाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये दो जो आदमी हैं, सजाद साहब और उमर साहब, जो मेरे खिलाफ लड़े, इससे सर आपको पूरा आज की हवा की अंदाजा चलेगी। वोट कटर मैं हूं कि वो है। उमर साहब ने पहले गांधरबल से फार्म भरा, अब मेरी बेल का सिलसिला चलने लगा। जय साहब ने तारीख डाली, सोचा देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देगा, अगर आ गए तो क्या होगा, फटाफट बड़गांव में भी भरा। सजाद साहब ने सोचा इंजीनियर तो मुझे 4 लाख वोटों से हरा गया, उसने काम किया। उन्होंने हंदवारा में पहले ऐलान किया, फिर कहा नहीं 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 कुपवारा में भी हारूंगा। आप सर ये तो इट इज एनफ, आई एम आंसरिंग एवरीथिंग। फरीद साहब आप तो सवाल बड़ा किया और खुद आप बिजी हो गए। सवाल तो ये मेरी चारों तरफ नजर है, मैं भी यादाश्त मेरी बराबर है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कहना यह है, दोनों उमर साहब और सजाद साहब, उनको पार्लियामेंट की हार की मिर्ची अभी भी फील हो रही है, तो 2-2 सीटों से लड़े। लेकिन मैं उनको एश्योर करता हूं दोनों सीटों से आप हारेंगे। मोदी साहब और अमित शाह जी के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे? आपने तो आप कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह, कल जो आपने दिल्ली में कहा, क्या आपको लगता है उनको आप उनके साथ लड़ पाएंगे? कमाल है सर, मोदी जी ने जितने वोटों से वाराणसी जीता, उससे ज्यादा वोटों से तो मैंने जीत लिया। फिलहाल मैं उसको हराया हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? चलिए सवाल ताली तो बन गया यार। इंजीनियर साहब एक सेकंड, आप सबसे पहले आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, आप बहुत कमजोर हो गए हैं त्योहार में। आप ये बताइए कि जो एक सेपरेटिस्ट वोट जो नहीं पड़ता था, जो बाइकआउट में रहता था, इस बार 6 लाख वोट नॉर्थ कश्मीर में अलावा पड़े हैं और सब कहते हैं उन्हीं वोटों से आपने जीता। तो वो जो सेपरेटिस्ट वोट जो सब कह रहे हैं कि ये इंजीनियर रशीद के लिए नहीं है, एक किस्म का जो एक वैक्यूम था वो फिल हो गया, सेपरेटिस्ट ने जो एक गुस्सा था वो आपकी तरफ चला गया क्योंकि आप अभी भी त्योहार में थे। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए आप सर, आपकी मर्जी जिस तरह चलाए, ये वोट सिर्फ 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके खिलाफ रेफरेंडम था, उसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात, ये उमर अब्दुल्ला महबूब थी सजाद हो, जो उन्होंने ड्रामे किए पिछले 5 साल, एक भी दिन इन्होंने कभी लाल चौक में निकले ऐसा नहीं है। उनको कौन मारता? पीसफुल तरीके से कोई भी उन्होंने कुछ किया? कभी हड़ताल की कॉल दे दी, कभी दिल्ली में धरना दिया। पार्लियामेंट में इनके 3 MPs का रिकॉर्ड देख लीजिए। हसनैन मसूदी को मैंने जेल में एक बार, हर्षवर्धन जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे शायद, उनकी तारीफ करते देखा। अरे लोग बेवकूफ नहीं है। सवाल यह है, अगर कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं, पहले आपने कहा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये सवाल मैडम जी को पूछिए, उमर साहब को पूछिए कि वो हट्टे कट्टे हैं इस SKICC में, उनको क्या मैं कहूँ, अब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। सरकारी मेहमानों की तरह 6 महीने रखा गया और इंजीनियर रशीद की सेहत क्या है कि सर्जरी आई है, पूरा पेट काटा है, गाल ब्लेडर खत्म, 3 महीने में अस्पतालों में रहा। मतलब क्या क्या मेरे साथ नहीं हुआ। ये सवाल आप उनसे पूछे कि अगर इंजीनियर रशीद एजेंट होता, बीजेपी के साथ होता, तो इसकी सेहत यहां नहीं होती। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कल ही मेरे दोस्त ने त्योहार में, ईमानदारी से सर कहता हूं, जेल स्टाफ में से एक ने मुझे बोला, ट्रस्ट मी, कहा कि मुझे PDP ने बंदा भेजा। वो मैं बता दूंगा वो नाम, आज नहीं, आपको कभी बता दूंगा, प्रोग्राम में बता दूंगा दुनिया जाने की, बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड। मेरी जिंदगी का टाइटल ही है। मैंने जेल में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, कभी आपके डिबेट में आता था, फिर आप भूल गए, मैं वो दूसरी बात है। तो क्या मैं कह रहा था? PDP का आदमी आया मिलने के लिए ये आपसे। मुझे जेल प्रशासकीय आदमी ने बताया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर मापा मुझमें दम है, वो कोर्ट में जाए, मैं बता दूंगा कोर्ट में। कहा कि रशीद साहब, बाहर चर्चा चल रही है कि वो किसी गेस्ट हाउस में है। कहा पहले भी चर्चा थी 3 साल पहले। कहा मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर किया गया, किसी तरह ये पता निकालो वो जेल में है या गेस्ट हाउस में है। कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा 2-3 दिन बाद आ जाना।
कहा 3 दिन बाद ब्लैंक चेक लेके आए, कहा जितना पैसा भरना है इतना पता निकालो किस गेस्ट हाउस में है। कहा फिर मैंने कहा कुछ शर्म तो कर लो, उसका तो क्रिमिनलों से भी वर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसका फोन भी बंद है। कहा फिर शर्मा गए। ये उनकी मेंटलिटी है, दे नीड सम मेंटल अटेंशन। उनको आप इंजीनियर साहब एक थोड़ा सा बीच में पूछूंगा, ये फिर मैं दिमाग से निकल जाएगा। केजरीवाल से आपकी मुलाकात हुई थी? तो मेरे दिमाग से चाहिए था, आप तो हटे कटे हैं। नहीं, मुझसे मुलाकात हुई थी त्योहार में केजरीवाल से? एक और केस लगाना है क्या? नहीं ऐसे मतलब मैं नहीं सर, वो दूसरे जेल में थे। नहीं इंजीनियर साहब, आपको जानते हैं हम काफी सालों से, आपके प्रोटेस्टर्स हमने देखे जगह जगह पर, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, किस तरह से आप ये हैं वो। तो इसलिए मैं सोच रहा था, क्योंकि जो केजरीवाल की पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इंजीनियर रशीद की भी पॉलिटिक्स वही है, या आप उससे अलग है? आप मुझे क्यों उनके साथ जोड़ते हैं? वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी उतनी औकात कहाँ? मेरे उनसे वहां कभी नहीं मिला, लेकिन उनके जो केस में विजय नायर बंद थे, वो पिल्लई बंद थे, साउथ के जो लोग थे, वो रेड्डी था जो अप्रूवर बन गया कुछ, जिसने वो बॉन्ड्स दिए थे, शरद रेड्डी। वो बहुत ही मेरा जेल में बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। तो बहुत ही अब आपको खूब बॉन्ड मिलेंगे। हाँ, मुझे बॉन्ड मिलेंगे? अरे जनाब, मुझे लोग बॉन्ड दे रहे हैं, मुझे कुछ सर नहीं चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं। यहाँ पे शख्स हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी इंजीनियर साहब, आपका काफी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। आप 5.5 साल जेल में रहे, इट्स नॉट इजी टू बी देयर। बट आई हैव अ क्वेश्चन दैट बिफोर 2019 you would always speak about referendum, plebiscite, and you were actively involved in the protests of abrogation of Article 370. But since the time you're out, you have not spoken about the same. Is my first question, and then I'll come to the second question. आप मुझे क्यों, you want to draw headline, आप क्यों मुझे पकड़ रहे हैं अपने नैरेटिव में? पहली बात यह है, अभी तो मैं आज ही सुबह आया, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अभी चंद दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। आई एम नॉट डाउटिंग हिज कैलकुलेशन। अमित शाह जी भी बार बार यही कहते हैं, मोदी जी भी यही कहते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज द पीपल क्लेम। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान प्लेट में देगा नहीं कश्मीर को। वो कहते थे वो सब यहाँ आएंगे तो अच्छी बात है, हम उनका वेलकम करेंगे, हमारे ही भाई हैं। आपको आज़ादी क्या मिली? मतलब इंडिया पाकिस्तान को आपने कश्मीर के बीच में हमारी खूनी लकीर खींच दी और हमें जलील और खार कर दिया। तो कहना मुझे यह है, अगर राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना सही है, मुझे 5.5 साल से कोई पता नहीं दुनिया का कि पीओके के लोग जो कहते हैं आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका यह उनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं। कैंपेन के लिए जोश आई एम श्योर आए तिहार से बाहर, लेकिन जोश पूरा है। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर रशीद साहब।